Hello, can you hear me? Hello. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Hello. Good morning, sir. Good morning, sir. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, student. Good morning, sir. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Hello, student. Unmute yourself and say present. Hello. Yes, sir. 61. Sir, roll number 1. 17. Sir, roll number 5. Sir, Noor. Give me attendance fast. Sir, 9 Roll roll number number. 1. 12. 11. Hello, student. Can you hear Yes, me? sir. Sir, roll number Hello. 1. Roll number 7. Hello. 12. 52. Good morning, student. Hello. Good morning, student. Hello, sir. Good morning. Hello. Yes, sir. आवाज आ रही है? हाँ सर, आवाज आ रही है. Okay. Thank you. Sir, roll number 1. Yes. Wait. Now you have to give the attendance one by one. All of you unmute yourself. Ask all to mute all. Okay. Now I'm sharing your screen. Related attendance. Do it fast. Roll number 1. 1 to 10. Present. 1 to 10. 5. 5. 1 more. 9. 5 after that. 12. 9. Again. Sir, 15. 15. Number 7. Sir, Sir, roll number 17. 12. Hello. One by one. 1 to Number 10. 7. 7. Number 7. आवाज नहीं आ रहा है बेटा. आप कोई भी वॉइस में बोलोगे नहीं Sir, सुनिएगा. ए 1 sir, by 1. 1 का प्रेजेंट ऊपर वाले कॉलम में है. 1 हो गया. 1 5 Roll number 7. 7. 7. 7. Next. Sir, 1 का प्रेजेंट ऊपर वाले कॉलम में लगा है. 11. यहाँ पे नेम लिखा है. Next. 1 to 10. 11 to Sir, 20. 17. 17. 12. 17. Hello. 11. 11. Hello, sir. 12. 12. 21 to 30. 21 to 30. 31 to 40. 36. 41 to 50. 49. Sir, 43. 43, 49. 51 to 60. 42. 42, sir. 52. 52. 52. 59. 52, 54, 59. 58. 55. 58, 59, 55. Sir, 52. हो गया 52. Next, 61 to 70. 61, sir. 61, 67. 61, 67, 60. 67 हो गया.
70, 71 to 80, 75. 73, 75, 80, 80. So 73. 73, 74, 74. हाँ, 73. 76, 80, हो गया 80, 81 to 90, 81 to 90, तो 67 नहीं है शायद. 67 नहीं है, तो किसी ने बोला 67 प्रेजेंट और नॉट. 76. ओके 76. 76, ओके 76 हो गया. 81 to 90, 91 to 100, 94. 94, 101 to last. Anyone? Over? Okay, now attendance is over. Okay, so there are 25 per day, 26, right? Over. Chalo, okay, fine. Now we will continue. So again, welcome back, Dr. Babasaheb Ambedkar Mahavidyalaya, Vasai West, TYBCom 5th sem. Subject is Computer System and Applications. Second module is going on, Introduction to MySQL. I already presented by Assistant Professor Bipin P. Vaidya. I already shared you one of the PDF file that we have to do it today. Is it clear? Hello? Yes, sir. Yes, sir. I already shared you. That's why I shared that screen, because you don't know which chapter, which command is going on. So that's why you have to refer that command at home. Okay. So I am showing on the screen directly. Okay. Wait. Yeah, you have the MySQL command. It is given on. See that now screen. Yeah, first command. See that now. Use book database change. Show tables there. So we have to create table. So पहला command हम लोग पहले table बना. Now this is the table structure they are given in the. Now next one यहाँ पे चलिए rotate करें. Okay. Now ये rotate होगा, ये rotate होगा. Okay, fine, कोई problem. Rotate. Okay, first command. See that now. Create table sample. Listen about that command first. This statement create table command is used to create new table with a given name in the current database. जो भी database आप बनाओगे उसमें आप लोगों को create करना है. तो मैं practically आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ. Is it clear? I'm Yes, started the sir. MySQL और आपको अच्छी तरह से देखना है. कुछ भी query रहेगी तो unmute yourself and then you can raise your query. You can start the MySQL. Click on start. Start, then all program. After that, MySQL, and inside there command line client. Okay, password is I think admin. When you install that time, you have to set the password. You can get this command prompt. That means you are what MySQL is started very well. So first command. क्रिएट टेबल, तो उसके पहले क्रिएट डेटाबेस बनाते हैं. ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज वी आर क्रिएटिंग द डेटाबेस. TYBCom ऑलरेडी है क्या देखते हैं. सेमीकोलन. सी दैट फर्स्ट कमांड क्रिएट डेटाबेस TYBCom already exists there. You have to keep ready with your notebook and pen and you have to write the command. Already exists है, तो हम लोग अभी नया TYBCom 1 करके बना. TYBCom 1, it is not there. Okay, query okay. So we can get the command database. create करने के लिए command है create database and database name semicolon. So you are getting the query okay. That means आपका database बन गया. So you can show that databases using the command show databases. इसमें हमारा TYBCom भी है और now next one is TYBCom 1. Now you have to open that database. So use TYBCom 1. Keep ready with your notebook. All of you keep ready with your notebook और note down करो. जो command में बता रहा हूँ वो आप directly लिखो and then you can continue practice at home. अगर आप MySQL का practice नहीं करते घर पे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा because it is DOS based.
Now use ty become 1, that means command we are getting the answer database change. database change का मतलब आपका टेबल database open हो गए. Now you can use that folder और आपको आगे की कमांड जैसे टेबल बनाना वगैरह इसी के अंदर आ जाए. ओके. नाउ क्रिएट टेबल, अभी हमारा कमांड कर क्रिएट टेबल वाला. व्हाट दे आर गिवन, एक आप लोगों को बताया इंफॉर्मेशन दी है, कॉलम नेम दिया है, डेटा टाइप बताया हुआ है. तो वो डेटा टाइप से हम लोग पहला उन्होंने दिया कॉलम ने एम्प्लॉय नंबर और टेबल का नाम दिया है सैंपल. तो पहला कमांड हमारा रहेगा क्रिएट टेबल सैंपल. ओके. एंटर ब्रैकेट एंटर. अभी आगे मुझे कंटिन्यू करना है कमांड. सेमीकोलन जब तक नहीं देता तब तक कमांड कंप्लीट नहीं होती. इज इट क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट क्रिएट टेबल सैंपल और ब्रैकेट सिंपल ब्रैकेट ओपन करके हम लोगों ने आगे कंटिन्यू फील्ड नेम करना. फील्ड नेम में क्या दिया है, कॉलम नेम EMP_NO. सो आई एम राइटिंग देयर EMP_NO नंबर. ओके, EMP_NO. बट उन्हें आगे कुछ तो उसका डेटा टाइप और स्पेसिफाई किए. व्हाट इज दैट स्पेसिफाई? स्मॉल int, नो साइन, ऑटो इंक्रीज एंड प्राइमरी की. क्या क्या बताए? एक स्मॉल इंटीजर चाहिए और नो साइन मतलब नेगेटिव अनसाइंड, नो साइन मतलब नो नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, पॉजिटिव नंबर ओनली. ऑटो इंक्रीज मतलब ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 1 और प्राइमरी की सेट कर. ये सारी चीजें करनी है. उन्होंने आगे के पेज में वो कमांड्स दिए हुए हैं. ओके, पहले मैं रीड करता हूँ सारे कॉलम. एम्प्लॉय नंबर चाहिए, देन नेम, नेम varchar 10 में चाहिए. varchar मतलब कैरेक्टर एंड 10 कैरेक्टर. उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट टाइप में चाहिए. फिर उसका डेट टाइप मतलब फॉर्मेट इज देयर YYY MMDD. देन सैलरी डेसिमल विथ 7 डिजिट्स एंड 2 डेसिमल. ओके. देन वी कैन सी दैट आगे उन्होंने टेबल बना के आपको दिखाया हुआ है. कमांड्स ऑलरेडी दी हुए. देखो एम्प्लॉय NO स्मॉल int. हम लोग स्मॉल int का मतलब क्या है बताओ जरा. स्मॉल int you can write in small letter, no problem. All it is not a Small case integer. sensitive language. MySQL is not a case sensitive language. तो आपको स्मॉल लेटर में भी लिखेंगे तो भी आपको कमांड एग्जीक्यूट होने वाला है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, स्मॉल int के बाद आपको क्या है, अनसाइन. अनसाइन मतलब क्या हुआ बताओ. ओनली पॉजिटिव नंबर, नो साइन, ओनली पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर एक्सेप्ट करेगा नहीं इस फील्ड के अंदर. फिर उसके बाद ऑटो इंक्रीमेंट, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, दैट मीन इंक्रीमेंट बाय 1. आपने पहला एम्प्लॉय नंबर अगर 1 दिया रहेगा तो आपको नेक्स्ट टाइम वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट बाय 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा. ऑटो इंक्रीमेंट है, आपको नंबर भी नहीं डालेंगे तो भी ऑटोमेटिकली इट इज इंक्रीमेंट बाय 1. नेक्स्ट, प्राइमरी की. प्राइमरी की that means we want a unique key for the table that we identify while searching. और जब हम लोग सर्च करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन मिला तो इट कैन नॉट क्रिएट डुप्लीकेट एम्प्लॉय नंबर. इसका मतलब प्राइमरी की से हम लोग को क्या दे रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर को रेस्ट्रिक्शन दे रहे हैं कि आपका एम्प्लॉय नंबर में वैल्यू एंटर करते वक्त डुप्लीकेट वैल्यू नहीं आएगा. अगर एम्प्लॉय नंबर 1 ऑलरेडी है तो 1 वापस इंसर्ट करने के बाद एरर आएगा और बताएगा आपको it is a duplicate value. Is it clear? Hello, yes student. Hello. Yes, sir. Are you present all of you? I am not looking at you. Yes, sir. I am just Yes, sir. reading the command and teaching you. Okay. So okay. तो पहला हमारा फील्ड नेम होगा, लेकिन फील्ड नेम में देखो कितने सारे कंस्ट्रेंट आ गए. आपने डेटा टाइप बताया स्मॉल int, स्मॉल int मतलब इंटीजर नंबर, अनसाइन मतलब नो साइन, ऑटो इंक्रीमेंट मतलब इंक्रीमेंट बाय 1 और फिर प्राइमरी. इतने सारी चीजें आप लोगों ने एक ही फील्ड नेम को दी क्योंकि उन्होंने उधर उस तरह मेंशन किया. सेकंड, उन्होंने सेकंड क्या मेंशन किया था, varchar 10. तो एम्प्लॉय नेम और हम लोग दे रहे हैं varchar इन द ब्रैकेट 10 कैरेक्टर. तो व्हाट डू मीन दैट? varchar मतलब यू कैन इंक्लूड द इंटीजर आल्सो एंड कैरेक्टर आल्सो इनसाइड द नेम फील्ड. तो आपको 10 कैरेक्टर का स्पेस मिल जाता है और 10 से ज्यादा आप कैरेक्टर इंसर्ट नहीं कर सकते. अगर आपको इंक्रीमेंट करना है 40 कैरेक्टर so we can write here 40 characters. Is it clear? Hello? Clear? Yes, sir. Okay. Then comma. Why I am writing the comma in each and every field completed? क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट फील्ड में कंटिन्यू करना है. जब आपको नेक्स्ट फील्ड में कंटिन्यू करना है तो कॉमा एंड कंटिन्यू, जब तक ब्रैकेट और सेमीकोलन क्लोज नहीं होता है तब तक आपको वो कंटिन्यू कर सकते हैं. इज इट क्लियर? देन नेम, नेम के बाद डेट ऑफ बर्थ DOB. तो डेट ऑफ बर्थ के लिए डेट फॉर्मेट है, डेट में MMDDYY कॉमा एंटर.
आगे क्या दिया है, सैलरी, तो सैल करके उन्होंने डेटा फील्ड नेम दिया है, कॉलम नेम दिया है, और आगे बताया हुआ आपको डेसिमल, तो डेसिमल मतलब 7 डिजिट्स एंड आफ्टर दैट 7 डिजिट्स वी वांट द 2 डेसिमल पॉइंट, तो 7,2, तो 7 डिजिट में 2 डेसिमल आए, मतलब 5 डिजिट्स पॉइंट 2 डेसिमल, दैट इज इंक्लूडेड इन 7। क्या बता रहा हूँ डेसिमल में, 7 का मतलब है 5 डिजिट्स का नंबर एक्सेप्ट करेगा, फिर डॉट एंड 2 डेसिमल, मतलब इंक्लूड हुए 7। इज इट क्लियर? अभी आपका फील्ड नेम आगे कोई भी नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, नीचे आओगे, एंटर ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन, दैट इज द कमांड। नोट डाउन दैट कमांड, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, आपके पास नोट डाउन कर सकते हो, ये सारी चीजें आपसे होनी चाहिए, एक्सेप्टेड। नेक्स्ट, when you press enter key after semicolon, आपको मैसेज आया query okay, that means create tables are inside the ty become 1. Is it clear? Hello? Yes, sir. Okay. Now show tables. It is a command to show the tables inside the database. दिख रहा है, tables in ty become 1, sample table करके आपको दिखाई दे रहा है। Is it right? Hello? Hello? Yes, sir. That is the command to show the table in a database. Okay? Next. उसके बाद के कमांड आगे देखो, उन्होंने और एक टेबल बना के दिया है, क्या टेबल का नाम है, ऐसे लिख के आएगा, सपोज सी दैट नाउ आपको इस तरह कमांड यूनिवर्सिटी में पेपर में पूछने वाले, क्रिएट अ टेबल मार्क्स in a current database containing roll number in the bracket RNO comma small integer without sign, the name of the student, S name varchar 11, then date of birth, birthday, date, marks in a 3 subject M1 M2 M3, all are small integer with the size 3 but without minus sign, so roll number should be primary key and should increment automatically। इस तरह फिर आपको इतना ही आंसर करना है, ये आंसर्स आपको 7 मार्क 8 मार्क दिला सकता है। इज इट क्लियर? हेलो? या Yes, तो अभी sir. हम लोग क्रिएट टेबल मार्क्स भी बनाते हैं, अभी सपोज यहाँ पे इन्होंने इतना ही दिया हुआ है समझो, ओके, और हम लोग कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक पहला कमांड क्या आएगा, क्रिएट टेबल मार्क्स, चलो बनाते हैं, क्रिएट टेबल मार्क्स, एंटर, ब्रैकेट ओपन, क्या बताया उन्होंने उधर, बताया कि करंट डेटाबेस में रोल नंबर RNO स्मॉल इंटीजर विदाउट साइन चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग, एंटर RNO, ओके, रोल नंबर, फिर क्या बताया, स्मॉल int दैट इज इंटीजर, स्मॉल int, लॉन्ग int भी ले सकते हो। नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या बताया, नो साइन, विदाउट साइन दैट मींस अनसाइन, ओके, फिर ऑटो इंक्रीमेंट बाय कंटेनिंग रोल नंबर, ऑटो इंक्रीमेंट देना है तो ऑटो इंक्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पे दिया है वो, यहाँ पे दिया है देखो, शुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली, इट शुड हैव अ प्राइमरी की एंड शुड इंक्रीज ऑटोमेटिकली। अभी देखो प्राइमरी की उन्होंने नीचे भी दिया है, तो ये भी एक तरीका है, प्राइमरी की नीचे दे सकते हैं, प्राइमरी की इन द ब्रैकेट रोल नंबर, ऐसे भी ये तरीका है, जिस कॉलम को हम लोग को देना है आफ्टर कॉमा लास्ट में प्राइमरी की इन द ब्रैकेट और फील्ड नेम का नाम दोगे तो वो इसमें प्राइमरी की सेट हो जाता है। बट अगर मुझे प्राइमरी की पहले ही देना है तो यहाँ पे भी मैं प्राइमरी की सेट कर सकता हूँ डायरेक्ट। इज इट क्लियर? हेलो? नॉर्मली ऐसे ही करो, वो कंफ्यूजन मत रखो, जिस फील्ड को प्राइमरी की देना है लास्ट में आपको प्राइमरी की उस फील्ड में, एक ही फील्ड को आपको प्राइमरी की सेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? हेलो? Yes. ओके, नेक्स्ट, उसके बाद आपका कमांड नेक्स्ट वन, रोल नंबर के बाद उन्होंने क्या बताया, एस नेम varchar 11 चाहिए, तो एस नेम देते हैं, एस नेम varchar 11, ठीक है, कॉमा, एंटर, फिर उसके बाद क्या बताया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ अंडरस्कोर डेट, डेट फॉर्मेट, तो लिखते हैं बर्थ अंडरस्कोर dt और डेट फॉर्मेट, एंटर। आफ्टर दैट उन्होंने दिया मार्क्स इन 3 सब्जेक्ट, मतलब 3 कॉलम्स है, M1 M2 M3, स्मॉल इंटीजर और साइज 3, हम लोग लिखते हैं M1 इंटीजर इन द ब्रैकेट 3, ऐसे भी लिख सकते 3 साइज, एंटर, M2 इंटीजर इन द ब्रैकेट 3, M3 इंटीजर इन द ब्रैकेट 3, क्लियर? 3 साइज हो गया, और कुछ है विदाउट माइनस साइन, अभी आप विदाउट माइनस साइन मैंने अनसाइन लिखा ही नहीं, अभी मेरी गलती होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम लोग को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग को कमांड होती है, वो हम लोग यूज करेंगे, अभी फिलहाल नहीं करेंगे, अल्टर टेबल कैसे करते हैं वो आप लोगों को मैं बाद में बता दूं। यहाँ पे मैंने अनसाइन करना भूल गया, देखो
इंटीजर लिखा लेकिन अनसाइन करना भूल गया, तो दैट में अनसाइन नहीं किया है, तो हाउ यू कैन मॉडिफाई अल्टर द टेबल, वो भी एक कमांड होती है, मैं बताऊं, ठीक है। चलो नाउ एंटर, आफ्टर दैट ब्रैकेट क्लोज, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके, यस स्टूडेंट, हेलो, Yes, sir. अभी मैं अनसाइन देना भूल गया हूँ, तो आई हैव द कमांड अल्टर टेबल, व्हाट इज द कमांड, अल्टर टेबल, दैट इज चेंजेस इन द टेबल, मार्क्स, ओके, मार्क्स टेबल का नाम, फिर कॉलम का नाम मॉडिफाई, मॉडिफाई करना है, कौन सा कॉलम मॉडिफाई करना है, M1, उनके क्या दिया था, इंटीजर 3 दिया था, अभी हम लोग को क्या करना है, मॉडिफाई विद द व्हाट, अदर नेम, ये कमांड मैंने ऑलरेडी आपके बुक के अंदर चालू रखा हुआ है, मॉडिफाई करके आपको नेक्स्ट इसमें देखो, अल्टर कमांड, ये देखो यहाँ पे अल्टर मॉडिफाई, देखो दिखाई दे रहा है, ये चेंज किया हुआ, अल्टर मॉडिफाई, इस तरह मैं चेंज कर सकता हूँ कोई भी, तो हम लोग अभी मॉडिफाई M1 को कर रहे हैं, M1 को क्या कर रहे हैं, INT3 और आगे हम लोग दे रहे हैं अनसाइंड, ठीक है, बराबर, सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके, रिकॉर्ड सेट्स, बराबर है। ऐसे ही हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई बताओ, M2, ऐसे ही मॉडिफाई क्या करना पड़ेगा, M3, ठीक है, देखो तीनों मॉडिफाइड हो गए, क्वेरी ओके आया मतलब तीनों मॉडिफाइड, रोज अफेक्टेड, तीनों मॉडिफाइड हो गए, अभी चेक करना है कि वो मॉडिफाइड हुए कि नहीं हुए, तो मैंने एक कमांड दिया हुआ है, डिस्क्राइब टेबल, डिस्क्राइब टेबल होता है डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ मार्क्स, सेमीकोलन, तो आपको देखो टेबल में वो चेंजेस आए कि नहीं चेक कर, सीधा ना, डिस्क्राइब मार्क्स, DSC, डिस्क्राइब पूरा भी लिख सकते हैं, 4 लेटर्स में भी कमांड दे सकते हैं, डिस्क्राइब मार्क्स, देखो आप दिखाई दे रहा है चेंजेस, यहाँ पे M1 में, M2 में, M3 में चेंजेस आ रहे हैं, क्लियर, यस स्टूडेंट, हेलो, यस, ओके, तो दैट इज बीन डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, डिस्क्राइब टेबल, सर शो टेबल मार्क करेंगे तो भी दिखाई देगा ना? नहीं, शो टेबल्स में आपको क्या दिखाई देगा, वाली क्या बताऊं, मुझे क्या बताया था, शो टेबल्स में टेबल का नाम डेटाबेस में है कि नहीं वो खाली पता कर सकते, सी दैट नाउ, मार्क्स और सैंपल, शो टेबल्स में क्या कमांड मिलेगी आपको, ओनली वी कैन सी द टेबल नेम इनसाइड द डेटाबेस, TYBCom1 में 2 टेबल बनाए हैं, इसीलिए आपको शो टेबल्स में उसके नाम दिखाई दे रहे, इज इट क्लियर, हेलो, यस सर, किसने पूछा था, Yes, sir. या ओके, फिर अगर पूरा स्ट्रक्चर देखना है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, DSC और उस टेबल का नाम, तो आपको पूरा क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, क्लियर, हेलो, हेलो, यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जो डाउट है वो मैं क्लियर कर रहा हूँ, आपको डाउट था कि वो शो टेबल्स में पूरा स्ट्रक्चर दिखाता है क्या, नहीं, स्ट्रक्चर्स इफ यू वांट टू शो देयर इज अ कमांड डिस्क्राइब एंड टेबल नेम, और खाली टेबल का नाम डेटाबेस में है कि नहीं चेक करना है, तो आपका कमांड है शो टेबल्स, क्लियर, यस सर, ओके फाइन, Yes, तो ये आपके Yes, कमांड, sir. मैंने अल्टर कमांड भी चालू किया क्योंकि मैंने गलती किया था, तो अल्टर कमांड भी आपको डायरेक्टली चालू होगा, दैट मींस वी कैन चेंज द फील्ड नेम, मॉडिफाई एंड देन चेंज नेम कर सकते हैं, अल्टर कमांड आगे आने वाली है, तब तक आप कंटिन्यू, चलो टेबल बन गया, सो टेबल बनाने के बाद आप देख सकते हो शो टेबल्स करके आपका मार्क्स सैंपल दिखाई देगा, फिर आगे मैंने अभी डिस्क्राइब, ये कमांड दिखा रहा था, डिस्क्राइब DSC, शो कॉलम करके भी कमांड है, शो कॉलम, डिस्क्राइब, DSC कर सकते हैं, ठीक है, तो आपके बुक में ऑलरेडी मैंने डिस्प्ले किया हो, देखो डिस्क्राइब सैंपल, DSC, शो कॉलम्स फ्रॉम सैंपल है आपके बुक में, इज इट क्लियर, हेलो, Yes, sir. या Yes, और sir. एक कमांड उसके लिए है शो क्रिएट टेबल, जैसे मैंने कमांड लिखा था वैसे अगर मुझे देखना है, शो क्रिएट टेबल और टेबल का नाम है मार्क्स, इसी तरह जैसे मेरा कमांड था वो कमांड आपको डिस्प्ले कर, सी दैट नाउ, कमांड क्रिएट टेबल मैंने लिखा था, कोट्स के अंदर जितना भी टेक्स्ट वैल्यू है वो सिंगल इन्वर्टेड में है, क्रिएट टेबल मार्क्स, RNO स्मॉल INT अनसाइंड नॉट नल, फिर वैरकैर, देखो पूरा कमांड जैसे मैंने लिखा था वैसे कमांड वो रिप्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड क्रिएट टेबल की कमांड आपने कैसे यूज की थी वो शो कर, इज इट क्लियर, हेलो, Yes, sir. ओके, यस सर, नेक्स्ट, आफ्टर दैट नेक्स्ट वन, या नेक्स्ट पार्ट इज देयर अल्टर टेबल, अभी हम लोग को थोड़ा सा पार्ट अल्टर टेबल में करना है, वो चेक देखो, फर्स्ट वन
फर्स्ट एग्जाम्पल, हम लोग को एक टेबल में नेट सैलरी करके ऐड करना है। दे आर गिवन दैट कमांड, ऐसे आपको कमांड आएगी यूनिवर्सिटी के पेपर में कि फॉलोइंग टेबल you have to use and do the following commands. क्या है कमांड? To add a column net cell at the end of the sample table, the command will be, मतलब हम लोगों ने ये कमांड करनी है। क्या ये कमांड दी ही नहीं रहेगी आपको, ऐड एक कॉलम ऐड करना है नेट सेल करके, किधर करना है? एट द एंड ऑफ द सैंपल टेबल। चलो ऐड करते हैं, क्या कमांड रहेगी? अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है? सैंपल, और क्या ऐड करने बोला हुआ है? नेट सेल। तो पहले कमांड आएगी ऐड, ऐड करके कमांड है। जैसे मॉडिफाई है वैसे कोई कॉलम, अगर एक हाथ कॉलम ऐड करना है एग्जिस्टिंग टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में आपको एक हाथ कॉलम ऐड करना है तो ऐड, और कॉलम का नाम है नेट अंडरस्कोर सेल, और फिर उसका डेटा टाइप, डेटा टाइप क्या बताया था उसने? डेसिमल 8 को। अगर डेटा टाइप नहीं दिया है तो यू हैव टू गिव इट डेटा टाइप इंटीजर, और नेट सैलरी में क्या फील्ड नेम आ सकते हैं वो देना है, ठीक है? तो खुद नहीं देना जरूरी है, देयर कॉलम नेम एंड डेटा टाइप, देन प्रेस एंटर। देखो क्वेरी ओके आ गया। अभी हम लोग चेक करते हैं डिस्क्राइब सैंपल आ गया है कि नहीं, सेमीकोलन एंटर। देखो अल्टर टेबल के बाद मैंने डिस्क्राइब सैंपल किया, आई सी दैट नेट सैलरी आफ्टर सेल फील्ड नेम के बाद ऐड हो गया, ठीक है? यस स्टूडेंट, Yes, sir. ओके नेक्स्ट। तो सेल के बाद नेट सैलरी ऐड हो गया, मतलब ये कॉलम एक्स्ट्रा हम लोग ने अभी एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड किया। व्हाट इज द कमांड? अल्टर टेबल, चेंजेस इन द टेबल, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर ऐड, फिर आपका फील्ड नेम एंड देन डेसिमल। व्हाट इट? Yes, sir. ओके नेक्स्ट कमांड। अभी एक और दिया है, टू ऐड कॉलम डिजिग्नेशन, आपको और एक ऐड करने बोला है डिजिग्नेशन, लेकिन पर्टिकुलर फील्ड नेम के बाद उन्होंने दिया है आफ्टर द नेम कॉलम, मतलब नेम कॉलम के बाद मुझे क्या ऐड करना है? डिजिग्नेशन ऐड करना। तो किस तरह ऐड करोगे? अल्टर टेबल, ओके, टेबल का नाम सैंपल, फिर ऐड, आपको ऐड करना है डिजिग्नेशन। डिजिग्नेशन के लिए क्या चाहिए? फील्ड नेम varchar 12, तो varchar इन द ब्रैकेट 12। लेकिन कहाँ पे ऐड करने बोला है? आफ्टर नेम। तो मुझे एक और एक कीवर्ड्स ऐड करना पड़ेगा, दैट कीवर्ड्स इज आफ्टर। आफ्टर किस फील्ड नेम के बाद? नेम फील्ड नेम, आफ्टर नेम आपको क्या ऐड करना है? डेजिग्नेशन varchar। एंटर करता हूँ, क्वेरी ओके आया। चेक करते हैं डिस्क्राइब सैंपल, अप एरो की से आप कमांड रिपीट कर सकते हो। डिस्क्राइब सैंपल अभी देख सकते हो आप लोग, क्या दिखाई दे रहा है आपको? यस स्टूडेंट, व्हाट यू हैव सीन? आपको क्या दिखाई दे रहा है? नेम के बाद डेजिग्नेशन ऐड हुआ है, इज इट राइट? हेलो, Yes, sir. वेरी गुड। तो आपको कमांड क्लियर हो रहे हैं? एक एक कमांड? यस, हेलो Yes. स्टूडेंट। हाँ, sir. क्रिएट टेबल हो गया, शो टेबल्स हो गया, शो डेटाबेस, क्रिएट डेटाबेस पहले ही हो चुका था। नाउ अल्टर टेबल कमांड चले, उसके अंदर ऐड कॉलम हुआ और मॉडिफाई भी हो गया है। तो अभी ऐड के बाद आगे मॉडिफाई वापस उन्होंने बताया। आगे और एक कमांड ये दे, तो ऐड कॉलम आईडी, आईडी ऐड करना, ओके। आफ्टर तो नेम के बाद होगा, लेकिन सबसे पहले अगर ऐड करना होगा आईडी तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने दिया ऐड कॉलम आईडी बिफोर एम्प्लॉय नंबर इन सैंपल। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले करना है तो अल्टर टेबल सैंपल, आपको ऐड क्या करना है बताओ? आईडी, आईडी करके ऐड करना है। इंटीजर ऐड करना है, बराबर ना? इंटीजर स्मॉल इंटी वगैरह, इंटीजर स्मॉल इंटी भी चल सकता है, इंटीजर भी चल सकता है, ओके, दैट इज डेटा टाइप। लेकिन किधर करना है वो स्पेसिफाई किया हुआ, किधर करना है बताओ? बिफोर एम्प्लॉय नंबर, मतलब फर्स्ट कॉलम को करना है। तो उसको हम लोग अनसाइंड भी बताया हुआ है उन्होंने, अनसाइंड लिखता हूँ, लेकिन फर्स्ट इज अ कीवर्ड। कहाँ पे ऐड करना है? फर्स्ट फील्ड नेम, फर्स्ट कॉलम नेम इज आईडी, वो ऐड करना। एंटर किया फर्स्ट के बाद सेमीकोलन, तो वी कैन सी दैट क्वेरी ओके। तो आप डिस्क्राइब सैंपल देख सकते हो। तो आपको देखो आईडी किधर आ गया? आईडी फर्स्ट एम्प्लॉय नंबर के पहले, बिफोर एम्प्लॉय, ओके ना? फर्स्ट बिफोर करके कमांड नहीं है, फर्स्ट होता है, आफ्टर होता है, और लास्टली होना है तो डायरेक्टली लास्ट में ही ऐड। जो भी फील्ड नेम ऐड करोगे डायरेक्टली लास्ट में ऐड होगा, लेकिन अगर आफ्टर करोगे तो उस फील्ड नेम के बाद होगा, और अगर फर्स्ट लिखोगे तो पहले कॉलम में है। गॉट इट? यस स्टूडेंट? Yes, sir.
वेरी गुड। Yes, sir. नेक्स्ट आफ्टर दैट मॉडिफिकेशन कमांड। देखो इधर मॉडिफिकेशन, सपोज आपको टू चेंज द क्या करना है, टू चेंज द साइज ऑफ द सैलरी कॉलम। हम लोग को सैलरी का कॉलम में चेंजेस करना है, डेसिमल पॉइंट चेंज करना है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 7,2 है, हम लोग को 8,2 करना है। कैसे करोगे, तो अल्टर टेबल, टेबल का नाम सैंपल, ओके। आफ्टर दैट टेबल से हमें किसको मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई किसको करना है मुझे, सैल को, सैल फिर डेसिमल और इन द ब्रैकेट एंड देन 8,2, मतलब मॉडिफिकेशन इज देयर, बराबर है। मॉडिफाई कर रहे हैं Yes, sir. 8,2, तो 7,2 से 8,2 एंटर, वेरी ओके। आपको डिस्क्राइब देखोगे तो उसमें 7,2 के बाद क्या आ चुका है अभी सेल के अंदर 8,2। दैट मींस इन द मॉडिफाई द कॉलम डेटा टाइप और कॉलम। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. या देन नेक्स्ट वन, आपको मॉडिफाई नेम कैरेक्टर अभी करना है। याद है अल्टर टेबल क्या दिया है, टू चेंज द टाइप ऑफ द नेम। आपको नेम टाइप चेंज करना है, बराबर, नेम टाइप चेंज करना है। तो आप चेंज कर सकते हो कॉलम, वैरक्यार की जगह उनको क्या देना है, कैर देना है। हाउ वी कैन चेंज, अल्टर टेबल, अगेन अल्टर टेबल सैंपल, फिर क्या करना है मॉडिफाई, फिर टेबल का नाम क्या देना है, नेम, नेम चेंज करना है और उधर देना है कैर 10, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्या है, एग्जिस्टिंग क्या है, वैरक्यार है। अभी हम लोग को कैर 10 देना है, ओके। वैरक्यार है और कैर 10 करना है, एंटर कर रहे हैं, क्वेरी ओके। इसका मतलब हो गया, देखो आपका अभी डेटा टाइप में चेंजेस आ गए, नेम के डेटा टाइप में अभी इधर आ गया कैर 10। इज इट क्लियर? Yes, sir. यस। नेक्स्ट, अभी आगे जाके उन्होंने बताया हुआ है टू गिव द डिफॉल्ट वैल्यू 10,000 फॉर ऑल सैलरी, मतलब सारे सैलरी को कॉलम नेम में डिफॉल्ट क्या देना है, हमें डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना है। तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट करना भूल गए थे, अभी देना है। क्या करोगे, अगेन कमांड अल्टर टेबल सैंपल मॉडिफाई और सेल के अंदर सेल, सेल डेसिमल, क्या था डेसिमल पूरा लिखना पड़ेगा वो 8,2 और उसके बाद डिफॉल्ट, डिफॉल्ट कितना देना था हम लोग को 10,000 फॉर एवरी एम्प्लॉय। तो आप डिफॉल्ट 10,000 लिखा है, एंटर किया, क्वेरी ओके आ गया। नाउ वी कैन सी द डिस्क्राइब सैंपल। वहां पे देख सकते हो डिफॉल्ट वैल्यू में आपको सैलरी के सामने 10,000 दिखाई देगी, बाकी सब में नल नल है, डिफॉल्ट कुछ नहीं था, नॉट वैल्यू। तो यहाँ पे अभी वैल्यू इंसर्ट किया है डिफॉल्ट 10,000, गॉट इट। तो जिस एम्प्लॉय को हम Yes. सैलरी नहीं देंगे उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा 10,000। सैलरी 0 करेंगे तो भी उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा, तो सैलरी नहीं देंगे उसका तो भी उसका डिफॉल्ट वैल्यू क्या आएगा 10,000, गॉट इट। Yes, sir. ओके, Yes, sir. डिफॉल्ट। नाउ चेंज, चेंज इज कमांड। अभी अगर मुझे नाम चेंज करना है कोई फील्ड नेम का, मॉडिफाई इज चेंजिंग द डेटा टाइप, लेकिन अगर नाम चेंज करना है, जैसे टू चेंज द नेम ऑफ द कॉलम डेट ऑफ बर्थ, बर्थ अंडरस्कोर डेट फ्रॉम सैंपल टेबल, तो उसको चेंज करने के लिए क्या करना है, अल्टर टेबल सैंपल, ओके, चेंज, क्या आएगा चेंज। क्या नाम था, बर्थ डेट का नाम, डेट ऑफ बर्थ का नाम, उनको क्या देना है, डेट ऑफ बर्थ का नाम बर्थ B_DT देना है, B_DT। फिर आगे डेट, डेट फॉर्मेट है वो डेट दिया, सेमीकोलन। देखो क्या था, नाम क्या था, अभी हमारा पहले नाम था DOB, अभी हम लोग चेंज क्या कर रहे हैं, चेंज क्या कर रहे हैं B_DT एंड डेटा टाइप क्या है उसका डेट, एंटर, वेरी ओके। अभी देखते हैं डिस्क्राइब Yes, sir. में, तो आपको देखो क्या नाम आ गया, B_DT नाम आ गया, राइट। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. चेंजिंग द नेम ऑफ द कॉलम, कमांड मॉडिफाई नहीं है, चेंज नाम, अल्टर टेबल सैंपल चेंज, जो फील्ड नेम को चेंज करना है उस फील्ड नेम का नाम, और जो नाम चेंज करना है वो नाम और डेटा टाइप। इज इट क्लियर? हेलो, Yes, sir. ओके फाइन। चलो नेक्स्ट कमांड, आगे रोटेट, या देखो एक हाथ कॉलम मुझे निकाल देना है, डिलीट करना है, ड्रॉप आउट करना है, तो हाउ यू कैन ड्रॉप आउट, ओके। आपको अभी ड्रॉप आउट करना है, 3 मिनट रह गया, आपको जो है 4 मिनट है, अभी ये अल्टर की कमांड कंप्लीट हो जाए। ड्रॉप करना है तो कैसे कमांड करोगे, अल्टर टेबल ड्रॉप सैल, मुझे सैलरी ड्रॉप आउट करना है, तो सैल करके नाम दिया, कुछ डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की जरूरत है, ड्रॉप, एंटर किया, एरर आ रहा है,
सॉरी अल्टर टेबल का नाम नहीं दिया। देखो इस तरह अगर एरर आया तो आप समझ जाने का मेरा कमांड रॉन्ग है एंड यू हैव टू राइट टाइप द कमांड अगेन, अल्टर टेबल सैंपल, टेबल का नाम ही नहीं था, एंड देन ड्रॉप सैंपल। वेरी ओके। नाउ डिस्क्राइब, देखो आपका एक सैलरी करके जो कॉलम था वो डिलीट हो। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. ड्रॉप कमांड आपको समझ में आ गई। वैसे ऐड एस नेम वगैरह बाकी कमांड आप डायरेक्टली बुक से कर सकते हो जो कमांड अल्टर के रिलेटेड है। ऑलरेडी हो गया। नाउ इंसर्ट कमांड, मुझे स्टार्ट करें। इंसर्ट डिलीट अपडेट। अभी कुछ क्वेरी है आप लोगों को, 10 मिनट है, आपको रिज्वाइन होना है। अगर 2 मिनट में बंद होता है तो यू कैन रिज्वाइन एंड 10 मिनट्स यू कैन ज्वाइन अगेन, और 9:50-55 तक हम लोग वाइंड अप करें। आगे के कमांड हम लोग करते हैं। Insert, what is the command use of the insert? Inserting the record, add the new record in an existing table. आपके existing table में आपको नया record रोज add करना है तो insert into command होती है। तो यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे उन्होंने नाम दिया कि मुझे कुछ इस तरह record add करना है इधर sample table में। चलो add करते हैं हम लोग। Insert into table name sample, ओके और आपको आगे वैल्यूज देने हैं तो वी कैन गिव द वैल्यूज देने हैं। इसके लिए वैल्यूज, कॉलम का नाम स्पेसिफाई नहीं करने, ऑल वैल्यूज वी हैव टू इंसर्ट। तो पहला वाला वैल्यूज क्या है? आईडी 1, नेम क्या है? आनंद, ओके। सिंगल इनवाइटेड में हम लोगों ने लिखा हुआ है। व्हाई वी आर राइटिंग सिंगल इनवाइटेड? बिकॉज आपको सिंगल इनवाइटेड में जो लिखेंगे यहाँ पे सरनेम ऐड नहीं किया है तो मैं सरनेम अवॉइड करता हूँ। डायरेक्टली डेजिग्नेशन दिया हुआ है तो डेजिग्नेशन मैनेजर सपोज, ओके। देन आफ्टर दैट आई इंसर्ट योर बर्थ डेट देता हूँ। बर्थ डेट का फॉर्मेट है पहले ईयर, फिर बाद में मंथ और फिर डेट। तो 1988, वो भी सिंगल इनवाइटेड में 1988 डैश दे सकते हो, माइनस साइन डैश 07 डैश 04, ओके कॉमा। फिर उसके बाद उनको बर्थ डेट हो गया, मैनेजर हो गया, बर्थ डेट होगा। अभी नेट सैलरी है 15,000, वो डायरेक्टली लिख सकते क्योंकि वो नंबर है 15,000। ओके कमांड हो गई। देखो इंसर्ट इनटू सैंपल वैल्यूज, 1 इज आईडी एम्प्लॉय। जैसे मेरा ऊपर फील्ड नेम दे रहा है वैसे मैंने डायरेक्टली मैंने डिस्क्राइब सैंपल किया। आई जस्ट प्रेस एंटर की, एरर आ रहा है, मैच वैल्यू नहीं हो रहे, काउंट एट अ रो 1 2 3 4 5 6। अगेन डिस्क्राइब देखता हूँ मैच वैल्यू हो रहे क्या, देखो क्या वैल्यू मैच नहीं हो रहे। इंसर्ट इनटू आनंद, अच्छा एम्प्लॉय नंबर, देखो वहाँ एक गलती हो गया, आईडी के बाद एक एम्प्लॉय नंबर भी है तो 1 करके एम्प्लॉय नंबर भी डाल। नाउ क्वेरी ओके? Yes, sir. Yeah. Now Yes, sir. I want to see the whole record. Select star from table name sample.